Hello, dear kids. How are you, beta? I hope you all are safe and sound at your homes, beta. Okay, dear kids, we were discussing in last video about comparisons. Comparison that we can make using 3 degrees of comparison. We have 3 degrees of comparison. That is positive degree. In general, that is an adjective. Comparative degree, when we have two things or two nouns and we compare them on a basis of equality. And next one is superlative degree, the highest degree. Okay, on the basis of these degrees we did some exercises also. Worksheet 4, we have worksheet 4, superlative quiz time. Get into groups of 4, form a quiz team, read the questions given below, answer them in just 3 minutes. The group which is able to do so first is the winner. You know it very well that this is not possible to be in groups of 4 or and doing all these things. But yes, you can do, you can answer these questions at your homes on your own. Okay. So the very first question, who is the tallest child in the class? You know it better. सबसे लंबा लड़का या सबसे लंबा बच्चा, सॉरी, आपकी क्लास में कौन सा है? आई हैव जस्ट नेम पुट ए नेम here, that is Harpreet. Okay, so tallest, who is the tallest? You can just see the use of superlative degree and use of the with superlative degree. Highest degree, सबसे बड़ी जो डिग्री है सुपरलेटिव डिग्री है ये. Which is the fastest airline in the world? That I searched on the internet and I came to know about Boeing 747-8i. This is the fastest airliner in the world. Which animal has the longest tusks? Elephant. Which planet is nearest to the Earth? Mars. Which is the tallest building in the world? Burj Khalifa. Which is the biggest continent on the Earth? That is Asia. Which is the smallest continent on the Earth? Australia. Which is the highest mountain peak of the Himalayas? That is Mount Everest. These questions are given here. These are given here not only for your exercise for English only. These are questions related to your GK. You must know these facts. These are general knowledge questions and you must know. Sometimes you may be asked. Okay. Next exercise we have worksheet 5. The Olympic 2012 were held at London, the UK. The performance of the top 5 countries is given below in a tabular form. 2012 ओलंपिक्स हुए थे लंदन में, तो वहाँ पे ये कुछ टॉप 5 कंट्रीज़ हैं जिन्होंने मेडल्स जीते. जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने 46 गोल्ड, 29 सिल्वर, ब्रॉन्ज 29 एंड टोटल 104. ठीक है, इस तरह से चाइना, ग्रेट ब्रिटेन, रशिया और साउथ कोरिया ने भी अपने अपने कंट्री के लिए मेडल्स जीते थे. वर्क विद योर पार्टनर, स्टडी द टेबल केयरफुली एंड फिलिंग द ब्लैंक्स इन द सेंटेंस दैट फॉलो विद द करेक्ट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव. द US won the dash number of gold medal. लार्ज का द largest, that is done, largest. Great Britain won dash bronze medals than Russia. ग्रेट ब्रिटेन को यहाँ पे 65 है, चाइना को 88 है, तो ग्रेट ब्रिटेन को कम मिले. कम के लिए हो गया लेस ब्रॉन्ज मेडल्स. अब लेस ब्रॉन्ज में चाइना को 23 है, ब्रिटेन को 19 है, तो कम मिले ब्रिटेन को, तो लेस उसके लिए, कम के लिए लेस. ठीक है. द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वन एज डैश सिल्वर मेडल्स एज ब्रॉन्ज. यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने उतने ही, देखो सिल्वर 29 है, ब्रॉन्ज भी 29 है, मीन्स सेम है. ठीक है, बट सिल्वर मेडल अलग है, ब्रॉन्ज मेडल अलग है, बट है दोनों सेम, दोनों का नंबर सेम है. 29 ही सिल्वर है, 29 ही ब्रॉन्ज है. तो इसीलिए मैं आपको वो एक्सरसाइज भी बताई थी लास्ट वीडियो में, इफ़ यू हैव वॉच्ड दैट वीडियो, कि जब हम कंपैरिजन करते हैं
एंड पर्टिकुलर सिमिलैरिटी इज गिवन देयर, ठीक है, सिमिलैरिटी के बेस पे, तो एज डैश 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 एज का यूज़ करते हैं। द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वॉन एज मैनी सिल्वर मेडल्स एज ब्रॉन्ज। The United States of America won dash medals than any other country. सबसे ज़्यादा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को मिले 104, बाकी सबको उससे नीचे ही हैं। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वन मोर मेडल्स दैन एनी अदर कंट्री, उसको ज़्यादा मेडल्स मिले। द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वन डैश गोल्ड मेडल्स दैन चाइना। यूनाइटेड स्टेट्स को मिले 46 गोल्ड, चाइना को मिले 38, तो यूनाइटेड स्टेट्स के 46 ज़्यादा हैं, इनके कम हैं, तो मोर गोल्ड मेडल्स दैन चाइना कंपैरिजन। ठीक है बेटा। फ्रॉम डू इट योर सेल्फ, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेज यूजिंग द गिवन एडजेक्टिव ऑफ देयर कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म। विच इज़ द मोस्ट डैश विच इज़ द डैश फ्रूट इन इंडिया। अब पॉपुलर को यूज़ करना है। पॉपुलर का आपको पता ही है कि हम लोग जब इनकी सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं या फिर कंपैरेटिव डिग्री, तो ये लॉन्ग वर्ड जो है इनको हम लोग मोर और मोस्ट का यूज़ करते हैं। तो विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर फ्रूट इन इंडिया, क्योंकि एडजेक्टिव यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री यूज़ हो रही है, मोस्ट और सुपरलेटिव डिग्री के साथ में द। दिसंबर इज़ डैश दैन फेब्रुवरी, कंपैरिजन है दोनों का, दिसंबर और फेब्रुवरी का, तो कोल्डर। हेल्थ इज़ ऑलवेज बेटर दैन वेल्थ, हेल्थ और वेल्थ का कंपैरिजन है, और दैन का यूज़ हुआ है। दैन कहाँ आता है? कंपैरेटिव डिग्री में। ओके, तो बेटर। योर नाइफ इज़ नॉट so sharp as mine. Not so. If you remember the same rule that we discussed in previous video, if two nouns or things are made, any comparison is made between them, but they are dissimilar. वो एक बराबर नहीं है, समान नहीं है, तो उसके लिए हम लोग करते हैं नॉट सो डैश 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 एज, या नॉट एज डैश 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 एज। तो वही यहाँ पे भी यूज़ हुआ। योर नाइफ इज़ नॉट सो शार्प एज माइन, डिसिमिलैरिटी को शो कर रहा है। द लीनिंग टावर ऑफ पीसा इज़ नॉट एज टॉल एज द कुतुब मीनार, तो अगेन डिसिमिलैरिटी, यहाँ पे नॉट सो था, यहाँ पे नॉट एज कर दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग पेंटिंग्स इज़ डैश ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल। दो पेंटिंग्स के बीच में कंपैरिजन है तो मोर ब्यूटीफुल। आइंस्टाइन इज़ कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट इंटेलिजेंट साइंटिस्ट ऑफ आवर टाइम्स, तो द के साथ में सुपरलेटिव डिग्री मोस्ट। आई होप दीज ऑल एक्सरसाइज आर क्लियर टू यू बेटा, एंड प्लीज़ डू द सेम एक्सरसाइजेज ऑन योर PRT books. Thank you so much bete. God bless you.